Okay, so as a practical session, let us start with the session. Okay, I've already opened this application, that is Android Studio. Okay, and so today we are going to perform the first practical according to us, but this is the fourth practical. Okay, let me see the list of practical. If you won't find the list of practical anywhere, then you can simply go to this mobile application development one, and we'll find all the practical, all the experiment over here. Okay, so 1 2 3 को छोड़ देंगे तो 4 से start करना था, but ये हम लोग ने last time नहीं किया था. We have done with this fifth one. Okay. 22. So last time we had tried this one, that is develop an application that uses GUI component. Okay, so whatever GUI components which are there in the Android Studio, so those component को हमको use करना था. Even we cannot use all the components in a single application. We can in the registration form or something like that, but that requires time. Okay, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और वो टाइम हमारे पास में 1 घंटे में नहीं हो पाता है. So इसके लिए last time भी we were trying with the switching of activities. Okay, last time we were doing let me open that particular application. That application was like this experiment number 5. Okay, it was the application. I'll open this application. Okay, ठीक है चलो. हिना अंसारी ज्वाइन. ओके, हिना भी आ गई है. तो कुछ डाउट थे. We need to wait for this experiment number 5 project to be open. I work on this application, and I made one more activity in that particular thing. We'll find actually last time पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार. It was the main activity. It's still actually loading. Yeah. Okay. For few second I'll mute my videos. Okay, so if you will see this one, then we'll go to the design part. Let's see the design. Uh, so it was my main screen, that is the main activity on which I keep two buttons. Okay, I kept two buttons, that is 2 and 3. Okay, so after our practical, the last time we had a practical, I think 2 days before मुबशिर सर का लेक्चर था. So उसके अंदर we have taken only one we had taken only one button. Okay, that is 2. Okay, after that I have added one more button. Okay, so I'm on the first screen. Okay, if I'm on the first screen, and I can go with the help of this 2 button and 3 button on the second activity and the third activity respectively. Okay, so I change it later. Okay, simply what I have done, I have simply set an action listener on click listener on that particular button, and it will go from main activity to second activity if they will click on button 1. If they will click on button 2, if they will click on button 2, then if they will click on button 2, then it from main activity to the third activity they will go. Okay, okay, likewise we are having coding in the second one. In that we kept 2 buttons. You can see it in the design part. So this is the second activity, and I kept 2 buttons over here, 1 and 3, because this is the second activity, and this is the third activity. And on third activity I kept 2 and 1, because this is the third activity, so we can move to the 1 and 2. Okay, so in this way I uh, run that application, and let me show you wiser, so you can really see. अभी मैं काम करता हूँ. मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ड्रॉइड कैम को, so you'll not be able to see my face and will be able to see this one. Okay,
I hope my mobile screen is visible to you. ओके, अरे विजिबल है या नहीं? माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके, अब दिखेंगी. ओके, सो आई विल execute my application from over here. You can see. So मैंने execute किया यहाँ से. जैसे मैं रन करता हूँ मेरे एप्लीकेशन, पहले आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, स्विचिंग बिटवीन द एक्टिविटीज, वो भी हम लोग ने किया, तो वो आपको उसका आउटपुट पहले दिखा देता हूँ. द ग्रेडर इज बिल्डिंग, द ग्रेडर बिल्ड इज रनिंग. टेकिंग मच टाइम. फर्स्ट टाइम जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आफ्टर दैट तब एकदम फटाफट रन होने लगेगी. See that the application is already installed. You can see experiment number 5 on the right hand side. यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है EXP5. ओके, तो अगर वहाँ से रन करता तो भी हो जाता, बट आपके सामने मैं लाइव रन कर रहा हूँ. तो इंस्टॉलिंग लॉन्चिंग एक्टिविटी. ओके, डन. ओके, सो दिस इज माय स्क्रीन. ये तो हम लोग ने दो जो ऊपर के आपके दिख रहे हैं, दो एडिट टेक्स्ट in which you can enter your name and your password. That was just to use the edit text component. Okay, and the first component, that was text view. This is just a text view. There's no action list, no nothing like that. Okay, uh, we have two buttons over here. Okay, if I click on the second button, add supported obviously. चलो अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ so it will go to the second activity. So welcome to second activity. From the second activity I can move again to the first activity. तो फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट पे आ गया. सेकंड पे जाता हूँ, सेकंड पे, वहाँ से थर्ड पे जाता हूँ, थर्ड से वापस 2 पे आता हूँ, 2 से वापस 1 पे आता हूँ. ओके, सो एज इन दिस वे you can switch between the activities. Okay, so activity switching is very simple. You need to put a simple code. You need to put a on click listener on that particular button, और आपको एक इंटेंट बनाना है. इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कौन सी एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी पे जाना है ये आपको मेंशन करना है, और आपको उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है उसके ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट पास करके. तो जस्ट आपको 2 लाइन पुट करेंगे तो यू कैन स्विच बिटवीन द एक्टिविटीज. ओके, सो चलो अब यहाँ से आ जाते हैं. सो इसके अंदर those who want they can those who want they can add more number of components. Okay, so we have a challenge over here. We can do more work over here. Instead of all these components, say uh, this is the text view, these are the edit tag, these are two buttons, this is image view. We don't have space remaining on this particular screen. So you can use this one also, that is कहाँ गया, check boxes, radio buttons. Okay, to check to find your hobbies. Okay, so like our registration form is having all those options like male female, तो उसके लिए आपका रेडियो बटन यूज होगा. in radio button only one option can be chosen. Okay, तो एक ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हैं. चेक बॉक्सेस है तो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग चेक बॉक्सेस. सो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं. बाद में मैं भी इसको ट्राई करके ऐड करके आप लोग को बताऊंगा, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है. तो ना एक कंपोनेंट को अगर यूज़ करना है, अगर देखेंगे तो फिर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा आगे के लिए. ओके, सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5. ओके, वो आप वापस एक बार दिखा दूँ. एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या था हमारा? टू डेवलप एन एप्लीकेशन दैट यूजेस GUI component. Okay, so we are not able to use all the GUI components. So all these are components. ठीक है, कॉमन में आ गया आपके टेक्स्ट रिगार्डिंग, बटन रिगार्डिंग, विजेट्स, लेआउट. ओके, so all these are your components. So we cannot use all the components in a single screen on a single application. We can use it in different application as per the requirement. Okay, so like if you are doing a registration form, if you are making a registration, you can do it at your home. If it is feasible for you to work out on the Android Studio, then you can proceed with that also. You can form a registration form. Okay, आप एक registration form बना सकते हैं, login form बना सकते हैं. In registration form you need text view, आपको एडिट टेक्स्ट लगेगा, आपको चेक बॉक्सेस लगेंगे, आपको रेडियो बटन लगेंगे, आपको बटन लगेगा. ओके,
सो और आपको अबाउट योर सेल्फ के लिए आपको एक बड़ा सा टेक्स्ट व्यू भी लगेगा, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स भी लगेगा. सो ऑल these components are required for you in the registration form, so you can do it also. Okay, तो बाद में अगर टाइम मिला तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे. ओके, सो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 था. तो ये हम लोगों ने इसको यहाँ पे वाइंड अप किया. ओके, बिकॉज और हम ज़्यादा इसके अंदर अभी जा नहीं सकते. ओके, हम लोग अभी लेते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आज के लिए, दैट इज़ फोर्थ वन. ओके, experiment number 4, that is develop an application that writes data to the SD card. हम लोग एक्चुअली लास्ट टाइम ही लेना था बट हो नहीं पाया था. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट experiment that is develop an application that writes data to the SD card. ओके, सो हमको करना क्या है, पहले थीम समझो, पहले क्या करना है. आ जाते हैं, इसको बंद करते हैं. ओके, वेन एवर यू आर क्लोजिंग एन एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट, सिंपली गो टू फाइल एंड क्लोज प्रोजेक्ट. ओके, सो जो भी आपका प्रोजेक्ट ओपन है इट विल बी इजीली सिंपली क्लोज. ओके, यू नीड टू टर्मिनेट दिस एप्लीकेशन. ओके, तो ये हो गया, इसको हम लोग अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 था, डन. ओके, तो हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करना है. इसमें हम लोग को करना क्या है, द थीम इज दैट whatever data we will write in the edit text or in the text box. Okay, so what we have to do, I'm going to take one more project. मैं पहले बताता हूँ, पहले थीम सुन लो. हम लोग को एक एडिट टेक्स्ट लेना है. ओके, एडिट टेक्स्ट लेके उसके अंदर हम लोग को जो भी हम लोग टाइप करेंगे, ओके, whatever text we will type in that particular text box or edit text, okay, so that data will be stored in the form of file in your storage. Okay, in your internal storage, आपके मोबाइल के स्टोरेज में स्टोर होना चाहिए. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्या करना है हम लोग को, कैसा एप्लीकेशन बनाना है. ओके, यानी आपका एंटर किया हुआ कुछ डेटा फाइल में सेव होना चाहिए और वो फाइल आपके स्टोरेज में, आपके मोबाइल के स्टोरेज में जाना चाहिए. ओके, समझ में आ रहा है क्या करना है हम लोग को. आर यू पीपल गेटिंग द थिंग्स, द एम आपको समझ में आ रहा है, एम क्या करना है हम लोग को. देन ओनली विल स्टार्ट. ओके हमजा, बाकी लोग को समझा. सिंपली हमको डेटा एसडी कार्ड में, हमारे स्टोरेज के अंदर हमको क्या करना है, वहाँ पे एसडी कार्ड लिखा है, सिंपली विल कंसीडर इट एज अ स्टोरेज. ओके, तो हमको हमारे स्टोरेज में अपना डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है. ओके, अब उसको हम लोग उसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली उसको हम लोग ऐसा करेंगे, सिंपल एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं और एडिट टेक्स्ट लेके नीचे एक बटन रखते हैं. ओके, जस्ट फोकस करो, इमेजिन करो कि आपकी स्क्रीन है, उसके स्क्रीन के अंदर आप लोग एक एडिट टेक्स्ट लेंगे और नीचे एक बटन रखेंगे. अब उस एडिट टेक्स्ट में आप जो भी टाइप करते हैं वो टाइप किया हुआ आपका फाइल में सेव होना चाहिए और वो फाइल आपकी सेव होना चाहिए आपके इंटरनल स्टोरेज में. ओके, सो ये सिंपल हम लोग को इतना इतना काम करना है. ओके, so with the help of this we can demonstrate that the data has been stored or the data has been written into the storage. Okay, जो भी डेटा हम लोगों ने टाइप किया वो फाइल के फॉर्म में जाके आपके स्टोरेज में सेव हुआ. ओके, so with this theme let us start with the studio. Okay, so I need to create one application, sorry one new project. Okay, so जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे I will keep their name as the experiment number. Okay, I will take this empty activity and I will keep the name of this one, that is experiment number 4. Okay, this is experiment number 4. So all things are okay, the language is Java, save location, package name, SDK label and all that, finish. Okay, it's loading, the project is loading. Okay, done. now चल रहा है अभी. ओके, हो गया फिर हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया. ओके, तो दिस इज माय मेन एक्टिविटी. हाँ, अभी कुछ एरर था, मतलब ये रिजॉल्व हो गया. ओके, सो दिस इज द टेक्स्ट व्यू. इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. ओके, सो दिस इज माय स्क्रीन नाउ. अगर आपको कुछ बैकग्राउंड रखना है, चलो आज इसके अंदर हम लोग एक बैकग्राउंड रखते हैं, एक लाइट कलर का बैकग्राउंड, सो दैट विल कम टू नो कि बैकग्राउंड कैसे रख सकते हैं.
सो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड चूज़ करना है, एक अच्छा सा बैकग्राउंड। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ओनली दैट यू कैन डाउनलोड लॉट ऑफ इमेजेस, ओके, जो कि आपके मोबाइल के साइज़ के हो सकते हैं। आई हैव दोज इमेजेस विथ मी। दिस इज़ मोबाइल वॉलपेपर्स, ओके। तो इनका जो डायमेंशन है वो हमारे मोबाइल के अकॉर्डिंगली, सो वो हमको अच्छा रहता है। सो एनी लाइट बैकग्राउंड वॉलपेपर वी कैन टेक, बस जब कुछ ज़्यादा अगर आप लोग रंगीला लेंगे, कुछ कलरफुल लेंगे तो कुछ समझ में आता नहीं दिखता कि, एंड वी नीड टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑल्सो। तो वो सब करने के बजाय अगर लाइट एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, सो दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये वाला लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, go to the studio, I'll go to the resource folder and to the drawable, आ जाओ भाई आ जाओ, पेस्ट, ओके। सो डन। इसका नाम अगर आपको रखना है बी ए सी के, बैकग्राउंड के लिए, ओके, BACKGRT, बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ भी नाम रख के आपने दे दिया, आपने स्टोर कर लिया, ओके। सिंपली गो टू द कोड सेक्शन, और ये आपका देखो, ये आपका भी फिलहाल अभी फिलहाल कोई भी कंपोनेंट, वी कैन सी not a single component has been added on the screen right now, okay, not a single component, okay. So you will not find a single code uh, or of any component over here, okay. So simply हम लोग का एक काम करते हैं, मैं देखो सिंपली टाइप करता हूँ बैकग्राउंड का, ओके, एंड्रॉयड बैकग्राउंड आ गया। तो बैकग्राउंड दे दो, आपको आपको क्या बैकग्राउंड देना है। तो आपको पता है आपने आपने उसका नाम क्या रखा था, BACKGRD, ओके, मतलब वो आपका इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया। तो सिंपली मैं एक क्लिक करता हूँ, एंटर, ओके। अब इसको ज़रा सेव करके वापस से डिज़ाइन देख लो, द बैकग्राउंड हैज़ बीन एडेड ऑन योर स्क्रीन, ओके। सो दिस इज द लाइट वन, सो यू कैन यूज इट, ओके। नाउ अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ सो दैट आई कैन डिस्प्ले के वेलकम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग एवरी ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, सॉरी, और स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आप एक टेक्स्ट व्यू डालोगे और उसको लिखोगे वेलकम टू, या एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एटलीस्ट कम से कम इतना लिखेंगे सो दैट हमको समझ में आए कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कर लो, ओके। इसको मुझे टॉप पे रखना है तो मैं इसको एकदम टॉप पे रख देता हूँ, ओके। अब जाके इसको जो भी चेंजेस करना है, यू विल सी लॉट ऑफ जनरेटेड कोड हैज बीन जनरेटेड हुई है। तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ओके, वेलकम टू EXP4। आपको उसका टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है तो भाई सब चेंज कर दो, मैं रखता हूँ 10 पॉइंट। उसके बाद में टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो स्टाइल चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, 3-4 मैं हमेशा यूज़ कर लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो प्राइमरी रखा हूँ मैंने, कैसे दिखते हैं देखते हैं। प्राइमरी इज़ अ पर्पल वन, ओके। सो अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, ओके। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओके। आपको अगर इसको मैच पैरेंट, इसकी विड्थ को अगर मैच पैरेंट करना है पूरा, मतलब कि वो करना है, तो सिंपली इसकी विड्थ पे पैरामीटर यहाँ से हटा के MAT टाइप करो, मैच पैरेंट, कंट्रोल से गो टू द डिज़ाइन, दिस इज नाउ वेलकम टू EXP4। थोड़ा सा इसकी छोटा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट काफ़ी रहेगा इसके लिए, एंड भाई थोड़ा सा क्लिक कर लिया है, ठीक है, ओके। वेलकम टू EXP4, ओके। सो क्या क्या सोचा था हम लोगों ने, सेक्शन में हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू टेक वन एडिट टेक्स्ट, ओके, इन विच वी विल टाइप सम डेटा, ओके, सम टेक्स्ट विल बी entered by the user, okay, and that data is going to be stored in a file which you are going to create in your Java file, okay, and that file will be stored in the storage, that is internal storage of your mobile, okay। तो समझ में आया अभी। तो सबसे पहले हम लोग एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं, गो टू द टेक्स्ट पार्ट, दिस इज द टेक्स्ट व्यू, दिस इज द प्लेन टेक्स्ट, ओके। तो मैं प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया भाई साहब। लेने के बाद में आप उसको आप सबसे पहला काम, ये काम हम लोग कर लेते हैं, ये उससे हुआ नहीं एक्चुअली,
और इसको आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे रख लो। अब जाते हैं इसके कोड में और जो भी चेंजेस करना है आपको चेंज कर लो। अंदर कुछ रखना है नहीं रखना है तो मैंने हटा दिया, बल्कि पूरा पैरामीटर ही हटा दो तो चलेगा। सबसे पहले तो इसका नाम, इनपुट टाइप तो टेक्स्ट पर्सन नेम है, ठीक है। चलो सबसे पहले टेक्स्ट की हिंट दे देते हैं, क्या बंदे को क्या करना है, सो दैट द हिंट विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर दैट व्हाट ही हैज़ टू टाइप, और क्या टाइप करना है इसको, जो भी टाइप करना है तो वो उसको एक हिंट देना है, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हिंट, ओके। तो हिंट क्या देना है अपने को, प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट स्टोरेज, पर इतना लिखते हैं, प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट, ओके। तो वो कुछ समझ जाएगा। उसके बाद में आपको टेक्स्ट की साइज वगैरह भी चेंज करना है तो चेंज कर लो। चलो इसको रख देते हैं 10, और बाद में टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह आपको रखना है तो अलाइनमेंट भी रख लो। टेक्स्ट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो उसको भी बोल्ड कर दो। ये सब खाली बस दिखाने के काम है, ठीक है। एज यू कैन सी प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट, ओके। तो एक बार और कर लेते इसको। मैं तो हमेशा अपने कंपोनेंट्स को हमेशा मैच पैरेंट कर देता हूँ सो दैट कि वो पूरी वेट को कैप्चर कर ले, ओके। नाउ यू कैन सी द एडिट टेक्स्ट ओवर हियर। यूजर जब देखेगा प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट, ओके। So user जब click करेगा so that hint will be vanished, okay, and you can easily enter your data what you want to write. So ये हो गया हमारा edit text। अभी हमको एक बटन डालना है, ओके। एक बटन चाहिए अभी और कुछ नहीं। ये बटन लिया, ओके। ये बटन को थोड़ा हम लोग अच्छा खासा मोटा बना लेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर और कुछ नहीं है। So this is done। कोड में जाते हैं, अब आपको जो चेंज करना है कर लो इसका। सो इसका नाम रखते हैं राइट टू स्टोरेज, ओके। राइट टू स्टोरेज में इसका नाम रखा हूँ। और इसका अगेन आपको जो भी इसका चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। साइज़ में इसकी एटलीस्ट कम से कम भी तो भाई 15 पॉइंट रखता हूँ ताकि आपको दिखे वो, ठीक है। अब दिख रहा है अच्छा, राइट टू स्टोरेज, ओके। अब चलो इतना काफ़ी है, बाकी जो सजाना संवारना है वो तो आप खुद कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको बाउंड कर ही दिया। हाँ, थोड़ा सा कोड, इसका साइज थोड़ा सा छोटा लगा है मुझे तो मैं इसको 15 पॉइंट कर देता हूँ। एडिट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है यूजर को दिखना चाहिए ना, अब दिख रहा है। प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट, ओके। ना जो डिजाइनिंग पार्ट था भाई साहब हमारा, दैट ऑल वर्क हैज डन नाउ, ओके। नाउ द पार्ट इज वी हैव टू डू द कोडिंग इन द जावा फाइल, ओके। नाउ विल मूव टू द जावा फाइल, ओके। सब काम जो होना था वो हो गया। अब जावा फाइल में हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो how many component and which component you have used, okay। First of all we have used this one, that is text view, then we have used the edit text, and then we have used this button, okay। तो टेक्स्ट व्यू से तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं, ना ही इसके ऊपर कुछ हम लोग एक्शन लिस्टें डालने वाले हैं, ना ही कुछ इसको क्लिक करने वाले हैं, नथिंग, ओके। So we are going to deal with these two components, that is edit text। We are going to take the data from this edit text after entering by the user, okay। जब यूजर एंटर कर लेगा तो उसके एंटर करने के बाद में यहाँ से हम लोग डेटा उठाएंगे और अपनी txt फाइल में, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करेंगे, ओके। तो हमको ये वाले कंपोनेंट से काम है, ये वाले कंपोनेंट से काम है, ध्यान रखना, ओके। सो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है और बटन है, दो है। तो सबसे पहले लेते हैं एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, ओके। नाम रख दिया मैंने उसका ईपी, ओके। उसके बाद में फिर एक बटन भी है, चलो बटन भी ले लेते हैं। बटन का नाम रख दिया बीटी, ओके। तो ये शॉर्ट वाले नाम हैं, आप चाहे तो कोई और नाम भी रख सकते हैं, ओके। उसके बाद में चलो आते हैं हमारे कोडिंग की तरफ। सबसे पहले ईटी को, तो ईटी इज इक्वल टू, आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि ये आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने जो कंपोनेंट है उनको लिंक कर रहे हो, ओके। आपकी जो रिसोर्स फाइल में जो उसकी आईडी से आप लिंक कर रहे हो, सो दैट जो भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा वो एक्शन आपके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल आपको एडिट टेक्स्ट से टेक्स्ट उठाना है, ठीक है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर उसको प्रॉपरली अपनी आईडी से लिंक करो। कौन सी आईडी से? अच्छा मुझे बताओ इसकी आईडी क्या है? आपके एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या देखते हैं? ये आपका एडिट टेक्स्ट ये है, मतलब कि एडिट टेक्स्ट, उसकी आईडी क्या है? आईडी इज दिस वन, दैट इज एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, दिस इज द आईडी ऑफ द एडिट टेक्स्ट। ओके, सो it equals to find view by id, find view in a find that component by its id which is in the resource folder dot id। हम लोग उसको आईडी से फाइंड कर रहे हैं। डॉट उसका आईडी क्या है? एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, अभी मैंने आपको रीड करके बताया। ओके, तो एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम बाहर आओ, सेमीकोलन, सेव, नीचे आ जाओ, डन। एक लिंकिंग हो गई। अब आते हैं बटन पे। तो बीट इज इक्वल टू, इसको भी फाइंड करो भाई, जो कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर आईडी से सर्च करो और वापस जाके आपको देखना पड़ेगा। इफ यू आर डीलिंग विद मल्टीपल कंपोनेंट्स देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द आईडी, द नेम, द आईडीज which they have been given to all the components। Okay, so here I've taken only one edit text over here, so this is very simple for me to identify the id of this edit text। Okay, बट अगर हम मल्टीपल आईडीज यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पर उनके आईडीज का बड़ा ध्यान रखना होता है। ओके, आपके बटन की आईडी क्या है? दैट इज सिंपल बटन। ओके, गो टू दिस जावा फाइल, सिंपली विल राइट बटन कंप्लीट सेमीकोलन, नीचे आ जाओ, हो गया भाई साहब। ठीक है, तो कंपोनेंट की लिंकिंग हो गई है। अब क्या करना है हमको? व्हाट इज द थीम? द थीम इज दैट व्हेन यू क्लिक आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट, after entering the text over here you will click on this write to storage button। okay, so when you click on this write to storage button, so क्या होना चाहिए? इसके ऊपर एक ऑन क्लिक लिस्टनर, यानी कि इसके ऊपर ना एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए? वो एक्शन हम लोग को परफॉर्म जो करवाना है वो आपको इसमें कोड में डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बटन के ऊपर आपको ऑन क्लिक लिस्टनर डालना है। ठीक है, सो मुझे बताओ बटन का आईडी क्या है? सॉरी, बटन का कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? बीटी। ओके, सो बीटी डॉट, ओके, आपको इसके ऊपर क्या ऐड करना है? सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, so this set on click listener is the method which I am using repeatedly। okay, so ये आपको सामने सामने मेरा आ गया है। okay, so I'll click set on click listener। अभी पिक्चर बाकी है। you are creating a new stand, new, that is on click listener। तो पहले आ गया view dot on click listener, एंटर करोगे तो it will automatically generate the method that is on click। so you are going to override the method that is on click method। okay, तो आपको ऑन क्लिक मेथड को ओवरराइड करना है। तो ऑन क्लिक मेथड जो आपका इनबिल्ट मेथड है, लेकिन आप उसको ओवरराइड करोगे, सो व्हाटएवर फंक्शन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर बटन, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज बीटी, तो उसके बाद जो भी परफॉर्म करना है आपको यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे तो वो एक्शन वो परफॉर्म करेगा। ओके, अब हम लोग क्या करना है? सबसे पहला काम तो ये करना है भाई साहब कि इससे हम लोग जब कहाँ गया, हाँ यहाँ गया, तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है? टेक्स्ट उठाना है। ओके, सबसे पहले क्या काम करना है हम लोग को? यहाँ से टेक्स्ट उठाना है। जो भी यूज़र एंटर करेगा तो यहाँ से टेक्स्ट उठाना है और उठा के उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं पहले। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि खाली मैं बोल रहा हूँ बस? कुछ हाँ नहीं, कम से कम पहले ज़रा आवाज़ भी आती थी पहले। ओके, अब तो खाली सिर्फ यही चल रहा है बस खाली। यस सर, समझ रहा है, यस सर, कुछ बोला भी करो यार तुम लोग। चलो ठीक है, सो चलो इसको ज़रा फटाफट देखते हैं, हमारे पास में उतना लिखने का टाइम भी है। आई थिंक मैंने कुछ कल जो कोड कर रहा था मैं, मेरे पास में होगा। हाँ ये तो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, मैं थोड़ा सा काम फास्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? एक्सपोर्ट। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रिंग लिया मैंने जिसका नाम है मैसेज। ओके, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे एडिट टेक्स्ट में से मुझे टेक्स्ट को गेट करना है। ओके, सो दिस इज माय एडिट टेक्स्ट। ओके, एंड I need to get the text, whatever text which has been entered by the user। okay, तो मुझे इसका टेक्स्ट को गेट करना है। अब अगर उसके टेक्स्ट को गेट करना है तो कौन सा मेथड है मेरे पास में? गेट टेक्स्ट कहाँ से गेट करो? ईटी से करो। ईटी कौन है? ईटी हमारा एडिट टेक्स्ट है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने लिंकिंग करके रखा है
इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि ईटी से हम लोग वो आपका जो गेट टेक्स्ट मेथड है वो सिंपली जाएगा ईटी के पास में, ईटी से एडिट टेक्स्ट के पास में जाएगा और यहाँ जाके जो भी लिखा हुआ है वो सबको क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, ठीक है। और गेट करके कहाँ स्टोर करेगा, मैसेज में स्टोर करेगा, विच इज स्ट्रिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आपको ना तो ट्राई कैच डालना है। जैसे हम लोग अपने जावा कोड में ट्राई कैच डालते ही हैं, तो ट्राई कैच यहाँ पे भी डालना है। कॉज इफ एनी एक्सेप्शन अगर आता है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास में ट्राई कैच हम लोग यूजुअली डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग ने डाला है। तो चलो पहले ट्राई कैच डाल देते हैं आपकी, ठीक है। ट्राई, देखो ट्राई ऑटोमेटिक आ गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कैश क्लॉज या फिर ऐड फाइनली ब्लॉक, तो आपको कैश डालना है। ये कैश भी आ गया आपका। तो सारा काम इसमें ऑटोमेटिक होता है, आपको खाली बस ध्यान से वो करना है। ओके, इसकी जगह हम लोग कुछ दूसरा भी डाल सकते हैं। पहले ट्राई में आते हैं। तो ट्राई में आने के बाद में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हाँ, सबसे पहले मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम लोग देखो, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का किए थे, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल किए थे, तो उसमें हम लोगों ने एक फाइल बनाए थे, फाइल के अंदर रीड किए थे, फाइल में राइट किए थे, अगर आपको याद रहेगा। ओके, एंड यू नो दैट दैट वी हैव अ फाइल स्ट्रीम आल्सो। If you people have an idea about this file streaming, that is input file stream, output file stream, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल में से रीड भी कर सकते हैं, फाइल में से राइट भी कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, ओके, if you have to read the data from the text file, तो आपको क्या लगती है, आपको स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड टू यू। ओके, सो यू नीड अ स्ट्रीम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू हैव अ वाटर टैंक, देखो लास्ट टाइम में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। तो यू हैव अ वाटर टैंक, ओके, सो फ्रॉम दैट वाटर टैंक यू हैव मल्टीपल ऑप्शन दैट हाउ यू कैन टेक आउट द वाटर फ्रॉम दैट टैंक। तो आप क्या कर सकते हो, बकेट से निकाल सकते हो, ऊपर चढ़ के आपको बकेट से निकाल सकते हो, फिर आप ड्रम से निकाल सकते हो। तो यू हैव मल्टीपल मेथड्स। ओके, एक मेथड उसमें से एक अच्छा ये है कि आप एक टैप भी लगा सकते हो। अगर आप एक टैप लगा लेंगे तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जब चाहे उसमें से पानी ले सकते हैं। सो दैट टैप इज़ नथिंग बट द स्ट्रीम, ओके, सो विच इज़ कनेक्टिंग द वाटर टैंक का वाटर एंड यू। ओके, आप उसको बाल्टी में, बकेट में ले सकते हैं, ठीक है। दैट टैप इज़ नथिंग बट योर स्ट्रीम। सो लाइक सेम इन द सेम मैनर, अगर आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, ओके, उस टेक्स्ट फाइल में से डेटा आपको रीड करना है। ओके, किसको रीड करना है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग कोड इन द सी, तो आपके सी को उसमें से डेटा रीड करना है, किस में से, फाइल में से। तो एक तरफ है आपकी टेक्स्ट फाइल जिसमें से डेटा रीड करना है, और एक तरफ है आपकी जावा फाइल जिसको डेटा रीड करना है। ओके, दोनों के बीच में आपको क्या चाहिए, एक पाइप लगाना पड़ेगा, एक टैप लगाना पड़ेगा, एंड दैट टैप इज नथिंग बट द स्ट्रीम। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल दैट के ये वाला हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग को एक पाइप लगेगा, एक कनेक्शन लगेगा, जो कि यहाँ का डेटा, दैट इज एक टेक्स्ट फाइल का डेटा उस पाइप में से गुजर के जाएगा और आपका जो कोड है, आपका जो सी का कोड है, वो उसको रीड करेगा। ओके, इन द सेम वे। सो ये स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सी में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। ऑल ओवर द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट टास्क व्हाट वी हैव टू डू हियर इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ फाइल। ओके, और आपको पता है कि फाइल कैसे बनाते हैं। तो ये जावा में फाइल कैसे बनाते हैं, सिंपल फाइल क्लास से। ओके, तो मैं बना रहा हूँ एक फाइल, तो फाइल क्लास बनाया, फाइल का ऑब्जेक्ट है एफ। ओके, न्यू फाइल, एंड यू नीड टू मेंशन द लोकेशन आल्सो। ओके, कहाँ पर ये फाइल बनना चाहिए। तो दिस इज द पाथ, ओके, जहाँ पर ये एक्चुअली एसडी कार्ड लिखा है। तो ये आपका जो इंटरनल स्टोरेज है, मेरे मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है, वहाँ पर ही जाके फाइल सेव होगी। ओके, और उसमें उसके अंदर आपको नाम क्या रखना है, तो नाम मैं रखता हूँ मेरा नाम, ठीक है, मुक्ता.txt। ओके, अभी आपको कुछ एरर दे रहा है, java.io.file, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंपोर्ट नहीं है। ओके, तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से वो सिंपल वो ले लेगा। ओके, देखो उसमें क्या किया हम लोग, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है भाई साहब, लिया नहीं क्या अभी तक, ये लिया। देखो ये उसने इंपोर्ट कर लिया पैकेज java.io.file, ये वाला पैकेज उसने इंपोर्ट कर लिया है। तो इंपोर्ट करने के बाद में फिर यहाँ से एरर चला गया है। ओके, ये हो गया हमारा पहला काम। ओके,
अब दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ये हमारा जो ये हमारे ऑब्जेक्ट से हमको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है विद द मेथड क्रिएट न्यू फाइल। दिस इज द मेथड व्हिच इज इन जावा। तो ये रहा हमारा सेकंड लाइन, दैट इज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। ओके डन, ये पे हमारा काम हो गया। आते हैं थर्ड लाइन पे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो अभी हमको एक स्ट्रीम चाहिए। ओके, स्ट्रीम क्यों चाहिए हम लोग को डेटा आउट करना है। ओके, डेटा आउट करके हम लोग को कहाँ राइट करना है, फाइल में राइट करना है। तो जब डेटा भेज रहे होंगे तो उसके लिए आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम लगेगा। ओके, अगर आपको रीड करना हो, देखो यहाँ पर हम लोग को राइट करना है, रिमेंबर यहाँ पर हम लोग को डेटा को राइट करना है। इसके लिए वी हैव टेकन दिस वन, दैट इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके क्लास। ओके, और अगर हमको डेटा अगर किसी टेक्स्ट फाइल में से रीड करना होता तो वहां पर हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम लेते। तो यहाँ पर हम लोग को फाइल आउटपुट स्ट्रीम हम लोग ने लिया है बिकॉज वी हैव टू राइट द डेटा, वी हैव टू राइट द डेटा। तो डेटा राइट करने के लिए बेसिकली हम लोग फाइल आउटपुट स्ट्रीम लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, और उसमें मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया बिकॉज कौन सी फाइल का है भाई, तो उसको भी आपको लिंक करना है। ठीक है, यहाँ पर अगेन एरर आ रहा है, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहले बराबर दिखाता था वो एक्चुअली। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इम्पोर्ट रिक्वायर्ड पैकेज ऐसा करके कुछ पहले ऑप्शन आता था, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर बेसिकली। एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट दिस वन? तो इम्पोर्ट क्लास देखो हाँ, आया। तो यहाँ पर आप जैसे लेकर जाएंगे कर्सर, तो कैनॉट रिजॉल्व सिंबल फाइल आउटपुट स्ट्रीम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो आपका जो पैकेज है वो इम्पोर्ट नहीं है, वो सॉरी क्लास इम्पोर्ट नहीं है। तो वो क्लास इम्पोर्ट कर लो। क्लास इम्पोर्ट हुई भाई, किधर हो गई इम्पोर्ट क्लास। ठीक है, तो इम्पोर्ट होने से फिर आपका एरर भी चला गया। उसके बाद में देखते हैं अब क्या करना है, आपको राइट करना है, आपको बाइट्स को गेट करना है और राइट करना है। सो आप लोग यूजिंग एफ आउट ऑब्जेक्ट जो कि आपकी फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डॉट राइट, राइट इज द मेथड, राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे आप लोग, मैसेज। अच्छा मुझे बताओ मैसेज क्या है, मैसेज इज द वन इन विच वी हैव स्टोर्ड अ मैसेज। ओके, जो हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट में से लिया है। ओके, दैट्स अ मैसेज। सो मैसेज डॉट गेट बाइट्स। ओके, तो वो एक एक करके बाइट्स करके एक एक लेगा और उसमें राइट करना चालू करेगा। तो सिंपल अगर हम लोग ये वाला स्टेटमेंट डालते हैं, एफ आउट डॉट राइट, तो यूजिंग दिस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रीम है उसका ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट, राइट इज द मेथड, और ये हम लोग के मैसेज के अंदर से लेके राइट करना चालू किया। ओके, उसके बाद में क्या करना है भाई, क्लोज करना है। तो राइट करना हो गया तो फिर क्लोज कर दो, जैसे हम लोग अपने हर काम के बाद में रीड राइट के बाद में क्लोज कर लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, एफ आउट डॉट क्लोज। ओके, उसके बाद में और कुछ है, हाँ चलो उसके बाद में और कुछ नहीं है। एक टोस्ट मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आफ्टर डेटा हैज बीन रिटर्न वी कैन डिस्प्ले अ टोस्ट मैसेज। आप में से काफ़ी लोग को शायद पता नहीं होगा कि व्हाट इज टोस्ट मैसेज। आपने देखा होगा कि व्हेन यू क्लिक ऑन पर्टिकुलर बटन और कहीं पे जो आप लोग क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक छोटा सा ब्लैक कलर में या कहीं पर ऊपर या नीचे एक 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए एक टोस्ट मैसेज, एक एयर मतलब एक मैसेज आता है, और वो थोड़ी देर दिखता है, 3 सेकंड और 5 सेकंड उसकी लिमिट होती है। एक होता है शॉर्ट टोस्ट मैसेज और एक होता है लॉन्ग टोस्ट मैसेज। तो शॉर्ट जो होता है उसकी लिमिट होती है 3 सेकंड, और लॉन्ग वाले की आई थिंक 5 सेकंड होती है। तो 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आपको दिखेगा और फिर वो मतलब चला जाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज अ टोस्ट मैसेज। तो हम लोग टोस्ट मैसेज भी डाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग उसको खुद टाइप करते हैं। सबसे पहले टोस्ट मैसेज, ये रहा आपका टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, फिर आपका गेट बेस कंटेंट, गेट बेस कॉन्टेक्स्ट, comma, second is the data what you want to show or what you want to display. Okay, so मुझे ये वाला डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड, अगर अच्छे से हो गया, जैसे मैंने ट्राई ब्लॉक में रखा हूँ, तो ये रहा आपका डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपको ये बताना है कि ये मैसेज आपको कितनी देर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सिंपली यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, लेंथ देखो ये भी है, लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट। तो टेस्ट डॉट आपको लॉन्ग के लिए करना है, कंट्रोल स्पेस लॉन्ग। ओके,
ये क्लोज होने के बाद में आपको उसको शो करना है, ठीक है। तो वो होने के बाद में आपको उसको शो करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका ब्रैकेट क्लोज, डॉट अंदर आना चाहिए, डॉट शो। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट टेक्स्ट, सॉरी अ कंप्लीट पोस्ट मैसेज। तो ये वाला आपका जो आपका टेक्स्ट है दैट इज डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड। थोड़ा सा चलो हम लोग और ऐड कर लेते हैं, कॉन्ग्रेट्स डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड। ओके, ये हमारा लॉन्ग के लिए बताएगा। ओके, उसके अलावा एक्सेप्शन में मैंने डाला हूँ, सॉरी कैश ब्लॉक में मैंने एक और टोस्ट मैसेज डाला हूँ। तो ये क्या करेगा, आपके एक्सेप्शन से मैसेज जो भी मतलब जो भी अगर एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन से मैसेज लेगा और वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ ये क्या करेगा, अच्छा आपको ये भी बताऊंगा कि प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करता है। ये आपके लॉग में जो भी अगर एरर अगर आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोड अगर इस कैश ब्लॉक में जाता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, लॉग के अंदर आपके जितने भी एरर्स आए तो वो लॉग में शो करेगा। ओके, तो हमको लॉग में नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट टोस्ट मैसेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो वॉट एवर एरर, if any error comes then it will be shown, it will be shown over here. Okay, so instead of that particular text I have written e dot get message. ठीक है, तो e क्या है, आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। सो क्या करेगा, मैसेज गेट करेगा आपके एक्सेप्शन से। ओके, ये इनफ है हमारा। अच्छा, वन मोर सेटिंग वी हैव टू डू, अगर आप लोग ने नहीं किया हो पहले। सो इसके अंदर क्या करना होता है, वी हैव वन मोर फाइल 248 है, लेकिन ये हमको कंप्लीट करना है। आई विल रन दिस एप्लीकेशन, शो यू द आउटपुट एंड देन ओनली विल लीव। ओके, okay, so one more setting we have to do in the manifest file. Okay, most of you people are not having an idea about this manifest file, that is android manifest.xml. Okay, so all the setting regarding that particular project is stored in this particular file. You will see that the application part is there. Okay, and remaining that the allow backup true, icon कौन सा है, ये वाला है। लेबल इसका ex4 है। क्या प्रॉब्लम हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा ठीक है, राउंड आइकन दिया है, सपोर्ट आरटीएल वगैरह थीम ये है, एक्टिविटी का नाम ये है, और उसके अंदर मतलब ये सब चीज़ें इसकी उसकी सेटिंग की चीज़ है। ओके, सो हम लोग को कुछ इसके अंदर क्या करना है, एक परमिशन हम लोग को ऐड करना है, एक परमिशन ऐड करना है। परमिशन किस चीज़ की, आपको डेटा राइट करना है। ओके, आपको डेटा राइट करना है, इस चीज़ की परमिशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगी। तो परमिशन देने के लिए सिंपल मेरे पास में है, मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ गया रे भाई, हाँ, यहाँ पर है, देखो यूजेस परमिशन एंड्रॉइड नेम जो भी है, तो परमिशन आपको राइट एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर ये आपको करना है। देखो सिंपली मैं करता हूँ, यूजेस परमिशन, आपको कौन सी परमिशन चाहिए, आपको आपको राइट की परमिशन चाहिए। तो राइट की परमिशन आपको ढूंढना पड़ेगी, कहाँ पर है, देखो इसके अंदर वाईफाई की है, नेटवर्क स्टेटस की है, तो बहुत सारी परमिशन है। सो वी कैन टेक द राइट परमिशन। कहाँ पर आती है राइट परमिशन, ब्लूटूथ के रिगार्डिंग भी है, ब्रॉडकास्ट कॉल कैमरा कैप्चर चेंज। Instead of searching, I will simply do, I will simply copy and paste. ओके, तो आपको वो चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। तो मैं इसको भाई, ओके, सो दिस इज डन। ये परमिशन पार्ट हम लोग को इतना खाली डालना था और कुछ भी नहीं करना है। सो हम लोग ने क्या किया, अपने एप्लीकेशन के हम लोग ने परमिशन अलाउ किया है कि भाई एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर, मतलब जो भी हमारा स्टोरेज है उसके अंदर राइट होना चाहिए। ये हमारे मैन्युफेस्ट फाइल में हम लोगों ने ऐड किया है। ओके, इसको क्लोज कर देने का, इसको रखने का नहीं, बेचारी बहुत डेलीकेट फाइल है। तो ये हो गया हमारा। चलो मैं वाइजर स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन, सब कुछ हमारा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपने एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं। सो ऑल इज डन, नाउ विल रन दिस एप्लीकेशन, लेट अस सी द एप्लीकेशन इज रनिंग। आई होप यू ऑल आर concentrating on this one। कुछ एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। एंड्रॉइड रिसोर्स लिंकिंग फेल।
देखो ड्रॉएबल का एरर आ रहा है। ड्रॉएबल का मतलब जो हमारा जो बैकग्राउंड हम लोगों ने डाला है ना, उसका एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कोड में जाते हैं और देखो ये इसका इसी का एरर आ रहा है ना, ये आपका रेड में दिख रहा है। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग बैकग्राउंड हटा देते हैं, ठीक है। भाई साहब बैकग्राउंड का उसको लोचा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग हटा देते हैं। वापस से मैं रन किया हूँ मेरा एप्लीकेशन। देखते हैं, वेट करते हैं, कोई एरर नहीं आना चाहिए अभी। स्क्रीन आपकी पीछे बैकग्राउंड हटा दिया हूँ मैंने अभी। इंस्टॉल, launching activity and done. Okay, now you can see the application. Welcome to, अभी हमारा बाकी का किधर गया पता नहीं। वेलकम टू EXP4 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, ठीक है। चलो हम तो कुछ से तो मतलब नहीं, यहाँ पर भी ऐसे दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ एंटर करना है। प्लीज एंटर टेक्स्ट टू राइट। ओके, सो आई विल एंटर द टेक्स्ट ओवर हियर। सो मैं लिखता हूँ अंजुमन इस्लाम कासिफर टेक्निकल कैंपस पनवेल नवी मुंबई। ओके, इतना मैंने लिखा एंड आई विल क्लिक ऑन द राइट टू स्टोरेज। जैसे मैं लिखता हूँ राइट टू स्टोरेज, तो नीचे जो एक पॉपअप बन के आ रहा है, दिखा आप लोग को? एक बार और देखो, नीचे लिखे आ रहा है कांग्रेट्स डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड, दैट इज कॉल्ड द टोस्ट मैसेज। ओके, सो द एनी काइंड ऑफ दिस टोस्ट मैसेज यू कैन डिस्प्ले। तो ये हमारा डेटा राइट हो गया। अब भाई पता कैसे चलेगा हम लोग को, तो हमारे, अब मैं जाता हूँ मेरे फाइल मैनेजर में। ओके, सो मैं गया मेरे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद दिस इज माय इंटरनल स्टोरेज। ओके, सो मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक फाइल बनना चाहिए। मेरे इंटरनल स्टोरेज में एक फाइल बनना चाहिए, उस फाइल का नाम रहेगा मुख्तार डॉट टी एक्स टी। ओके, ये फाइल बनना चाहिए और उसमें जो मैंने लिखा हूँ वो उसके अंदर राइट होना चाहिए। ओके, पहले तो ये चेक करना है कि वो फाइल बनी है कि नहीं, क्रिएट हुई कि नहीं। ओके, जस्ट देखते रहो आप लोग भी, कहीं फाइल मिल जाए तो मुझे बताओ। मुख्तार डॉट टी एक्स टी, विल फाइंड दिस मुख्तार डॉट टी एक्स टी ओवर हियर। देखो यहाँ पर मुझे नज़र आ गई है, आ रही है नज़र आपको मुख्तार डॉट टी एक्स टी। सो आई गॉट दिस फाइल, आई विल ओपन दिस फाइल मुख्तार डॉट टी एक्स टी। जैसे ओपन करता हूँ तो what data you have written over there, it will come over here. Okay, Anjumana Islam Stalsekar Technical Campus Panvel Navi Mumbai. Okay, so whatever data you will write over there, that will be displayed over here. Okay, so एक बार इसको और ट्राई करना है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, फटाफट ट्राई कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। 54 हो गया है तो हुआ, वापस से आया। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दैट आई विल कुछ और भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो कुछ और मैं टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर राइट टू स्टोरेज, कांग्रेट्स डेटा रिटर्न इन एसडी कार्ड। ओके, अगेन आई विल गो टू माय दैट इज फाइल मैनेजर, ओपन करता हूँ वापस से। यू विल फाइंड जो पहले का डेटा था वो चला गया और आपने जो डेटा लिखा था वो उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। ओके, सो ये डेटा हम लोग को मिल गया। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अरे हुआ क्यों नहीं क्लियर, बोलो तो रे भाई, तुम लोग क्या, तुम लोग अनम, अनम किधर है या नहीं? अनम, आर्यन, हमदान। Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पर आप लोग को उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको जो भी डेटा यहाँ से ले रहे हैं उसको आप लोग को डेटा को राइट करना था एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर। दैट्स अ बेसिक task you can do it in the C programming also, in the Java also, in the Python also. Okay, the same thing we have done over here also, and this is successfully done. Okay, so I hope these two practicals are done, the fourth one and the fifth one. Okay, सो आपको मैं बताऊंगा क्या कैसे करना है और इसके अंदर आप लोग को इसका मतलब सबमिट कैसे करना है। तो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट की चेकिंग भी रहेंगी। सो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट की चेकिंग अगले हफ्ते तक हम लोग करेंगे और उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर आप लोग को इसका राइटअप कैसे भेजना है, ठीक है। और द कोड विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा कोड, बिकॉज अभी
इसके अंदर ऑनेस्टली जो लोग, ओके, ऑनेस्टली जो लोग कर सकते हैं वो लोग करो, ऑनेस्टली जो लोग कर सकते हैं वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे करो। और ये जो मैं कोड शेयर करूँगा इसको भी आगे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग कोड है, जैसे ये आपका ये वाला है, इसको भी अगर आप लोग आगे लेकर जाते हो, थोड़ा इसके अंदर और अगर एडिटिंग करते हो, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग करते हैं तो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से जो कर सकते हो करो, बिकॉज काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट्स स्टूडियो पर है या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर है, तो उनको तो आगे चल के करना ही है। तो अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे चल के अच्छा रहेगा। ओके, ओके, सो थैंक यू फॉर दी प्रैक्टिकल सेशन। हो गया, मैं लिंक आप लोग को शेयर कर देता हूँ। Hina, is it clear to you? Any doubt? Any one of you having any doubt, then please let me know. Okay. Regarding write up, regarding this submission. Okay, अगर आपके दिमाग में कुछ है तो बताओ।